اب تو سب خواہش پڑ گئی ہے. پھر بھی ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا. نہیں ہوتا. ابھی کیا، ابھی تو اللہ لا کی ڈولی میں جانا ہے، بس یہی خواہش ہے. ابھی اللہ پاک اٹھا لے چلتے پیتے. دونوں بیٹی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، ان کے عورت بچے نہیں، شادی بیاہ کرے سب کچھ ہوا، مگر فون کر کے مجھے کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بولا. اچھا. وہ سب بولتے ہماری ماں مر گئی ہمارے لیے. میرا کیا خون زیادہ کم ہوتے رہتا ہے، وائٹ سیل ریڈ سیل ہوتے رہتا ہے. تو اس سے پہلے میں آیا تھا پچھلے سال، تو ماشاءاللہ اللہ نے شفا دے دیا تھا، ہاتھ پیر اچھا ہو گیا تھا، سب کچھ صحیح ہو گیا آپ تھا. کو کوئی بیماری ہے؟ کینسر ہے. اچھا کینسر ہے آپ کو؟ رشتے دار نہیں آتے ملنے کو؟ رشتے دار نہیں آتے ہیں. آپ کو نہیں سنبھالتے؟ نہیں، میں ادھر آیا نہیں سنبھالتے. نہیں سنبھالتے؟ کیا بولتے؟ جاؤ جاؤ بولتے. آتے رسٹ کے کوئی گھر والے؟ ان کے بھائی ہے، وہ بھی کافی ضعیف ہے. ہم کو یہاں کر دیا ہمارے اپنے. ایک لڑکا ہائی کورٹ میں وکیل ہے، ہم کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتا. اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر میں رہوں، تو اس کو بہکا کے اس نے بھائی سے کہہ دیا کہ مجھے گھر سے نکال ڈالے. تو میں گھر سے نکل گئی. تم کو چاہوں گا، ہر مر کے پیار نہ ہوگا کم. یاد آتی ہے آنسو بہتے ندی کے، نہیں تو دودھ پہ جا کے بیٹھ جا کرسی پہ. نہیں، اگر اس نے لے کے گیا تو چلے جاؤں گی، ایسا کوئی نو لیکن یہاں بھی. میرا نام باسنا باگچی، میں بنگالی ہوں. اچھا بنگالی ہیں. یہاں کب سے ہیں؟ میں یہاں 4 مہینہ ہو گئے ہوں. آج کل جیسے مہنگائی میں آنا جانا ہے، لانا کرنا، سب کی دیکھ بھال کرنا ایک دم کٹھن کام ہو گیا. اب تو کیا خوشی اور کیا ناخوشی ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، نکل لیں گے دنیا سے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بچے یتیم ہو گئے، بچے لاوارث ہو گئے، بچے بے سہارا ہو گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی مدد کرنا ہے. بچوں کا ایک یتیم خانہ بھی ہوتا ہے، اناتھ آشرم بھی ہوتا ہے. میں کچھ دن پہلے ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر یتیم ماں باپ رہتے ہیں، اناتھ ماتا پتا رہتے ہیں، بے سہارا ماں باپ رہتے ہیں. دیکھیے بچوں کو کبھی ماں باپ جان بوجھ کر یتیم نہیں کرتے، وہ تو انہیں قدرتی موت آ جاتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد اولاد یتیم اور بے سہارا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ بے سہارا بھی ہوتی ہے تو وہ چونکہ ایک چڑھتی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن جب بچے ماں باپ کو یتیم کر دیتے ہیں، ماں باپ کو بے سہارا کر دیتے ہیں، لاوارث کر دیتے ہیں، چونکہ ماں باپ کے ڈھلتی عمر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سیٹل ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ تو آخری منزل کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. آج کے اس ماڈرن زمانے میں، آج کے اس نئے زمانے میں، پریکٹیکل اور پروفیشنل زمانے میں بچے ماں باپ کو جان بوجھ کر یتیم اور اناتھ کر دیتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ممبئی کے کائنات اولڈ ایج ہوم میں گیا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، جسے ہندی اور مراٹھی میں ردھا آشرم بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں. اس کا اردو میں مجھے کوئی نام نہیں ملا. میں آج ان ماں باپ کا، ان بے سہارا، ان یتیم، ان اناتھ ماں باپ کا انٹرویو آپ کو سنانے والا ہوں، آپ کو ان سے ملانے والا ہوں، ان کا درد آپ کو بتانے والا ہوں، جن کو دنیا نے نہیں بلکہ اپنی خود کی اولاد نے بے سہارا کیا ہے، جن کو دنیا کے جو دنیا کے ستائے ہوئے نہیں ہے بلکہ اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں. ماں باپ اولاد کو اس لیے پالتی ہے نا کہ وہ بڑھاپے میں اولاد ان کا سہارا بنے گی. میں اس اولڈ ایج کائنات اولڈ ایج ہوم میں نے کچھ ماں باپ کا انٹرویو لیا. میں نے ان کے لفظوں میں ان کے درد کو محسوس کیا ہے، ان کے چیخوں کو محسوس کیا ہے.
मैं तो बस उनका इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि बेमतलब, बेफजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं है। मेरा ये इंटरव्यू लेने का मकसद और ये इंटरव्यू आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कभी अपनों को अपने से दूर मत कीजिए, खास करके माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को सताना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह जीते जी दे देता है। माँ बाप को सताना एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हारी औलाद तुमसे वसूल करती है। आपको पता है ना, एक बहुत पुराना और मशहूर किस्सा है कि एक आदमी ने अपने बाप को मारने के लिए एक पोते में डाला और उसे कंधे पर डालकर समंदर में फेंकने के लिए गया। जब वो फेंक रहा था समंदर में, तो अंदर से उस बूढ़े बाप ने आवाज दी कि बेटा थोड़ा सा आगे फेंको, क्योंकि मैंने मेरे बाप को भी वहीं पर फेंका था। तो याद रखिए, माँ बाप को सताना एक ऐसा, हर जुर्म की, हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप को सताने का जो सजा है वो दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो आप सोच ही नहीं सकते। बिना देर किए मैं आपको वो इंटरव्यू बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमने एक बहुत ही शायद 75 साल की जो खातून थी, एक बूढ़ी औरत थी, उनसे हम मिले, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है। और उसकी वो हालांकि सारी दुनिया घूम चुकी है, लंदन, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह जाकर आ चुकी है, लेकिन आज वो कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बहन से मिलना है, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूं। मेरे शौहर के राज में मैंने बहुत ऐश किया, लेकिन मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं अकेली हो गई, मुझे अकेला कर दिया गया, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम जायदा है। जायदा है। हाँ। आपको बच्चे नहीं है, औलाद नहीं? औलाद नहीं, औलाद के लिए बहुत कोशिश की है पर नहीं हुई, क्या करें, नसीब की बात, तरफ की बात, अल्लाह की तरफ की बात है। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 साल की है। अच्छा, और शौहर, आपके शौहर के इंतकाल को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो जब तक शौहर थे तो वो संभालते थे? हाँ, शौहर थे, पूरी वर्ल्ड बम्बई घूम के आई मैं। अच्छा, पूरा अमेरिका, लंदन, पेरिस। अच्छा, हज भी पढ़ा दिए मेरे को, उम्रा भी करा दी, सब करा दी। अच्छा, हज उम्रा दोनों हो गया? सब हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ आ गई बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इतने अच्छे दिन बताया ना आपको। अच्छे दिन बताया, अभी ये दिन पे आ गई ना, मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ भी तो अच्छा ही है। यहाँ अच्छा ही है, कोई अपने वाले मिलने आते हुए तो अच्छा लगता है ना जरा। हम लोग आए ना तुम्हारे अपने वाले, हम लोग बेटी लोग हैं, ये लोग बेटे लोग। हाँ, बांधे पुणे से मिले, तुमको इतने लंबे से आए तुम लोग। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अरे मेरे बोनाई का नाम है अब्दुल रशीद। देखो आए ना रिश्तेदार। हाँ, रिश्तेदार, मेरा बोनाई का नाम था अब्दुल रशीद, मर गया बेचारा। लंबे लंबे तुमको मिलने आ रहे थे, से बढ़कर है ना। तुमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि तुमको पहले भी अच्छे लोग दिए और आज भी अच्छे लोग हैं। सब ऐसा कोई नहीं, सब समझदार अच्छे लोग हैं, नाते कुत्ते सब है। कोई भेदभाव नहीं रखे कि भाई ये गरीब है अमीर है, वो सब भेदभाव नहीं रखे। एक बार आ जाए बस, यही समझदार। मेरी बहन आ जाए, मेरी बहन को मैंने देखी नहीं, इतने साल हो गए। कितने साल हो गए आपकी बहन मिलने को नहीं आई? नहीं आई अभी, मेरे को यहाँ आके 6 महीनों में, और मैं मेरी बहन के यहाँ से गई नहीं अभी तक के। फोन पर कांटेक्ट फोन तो बात करती है वो भी। हालांकि मतलब उनकी तमन्ना ये है कि उनकी बहन एक बार मिल ले उनसे। बहनोई का नाम राशिद ना? बहन का नाम अजीजा। बहनोई का नाम? बहनोई का नाम रशीद, उनका नाम जो है ना अब्दुल रशीद। अब्दुल। दूसरी खातून से हम मिले तो उनका कहना यह है कि मैं खुद ही मेरे घर से निकल कर आ गई, क्योंकि मेरी औलाद मुझे रख तो रही थी, मगर चूंकि मैं बोझ थी, इसलिए मुझे सबके सामने बेइज्जत करती थी। मेरे नवासे, मेरे पोतरों के सामने मुझे जलील करते थे, इसलिए मैं खुद ही वो अपना घर छोड़कर यहां आ गई। मुझे यहां पर अपनों से ज्यादा गैरों ने प्यार दिया, इज्जत दी। याद रखिए, इंसान खाने का, पीने का इतना भूखा प्यासा नहीं होता जितना प्यार, मोहब्बत और सबसे बढ़कर इज्जत का भूखा और प्यासा होता है।
सुनिए खातून क्या कह रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बदरुन्निसा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 67 है। आप कितने दिनों से यहाँ पर मेरे को है? अभी 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटी है। अच्छा, बेटे क्या करते हैं? एक बेटा मुमरा में है, मीटर का काम करता है। एक बेटा मीरा रोड में है, रिक्शा चलाता है। अच्छा, तीनों बेटियों की शादियाँ हो गई? सबकी हो गई, उनके बच्चों की शादियाँ हो आपके गई। शौहर? मेरे शौहर गुजर गए, 15 साल हो गया। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पे क्या है, बेटे लोग हैं ना, औरत के बच्चों के सामने हमको नज़र से गिरा के बात करते हैं, आंखें भर भर के बात करते हैं, आंखों पे आते हैं, बहुत दिल को ठोस पहुँचाते हैं। तो उसकी वजह से बर्दाश्त नहीं होता था, और बोलने जाओ तो हमको ही डांटते। औरत बच्चों को नहीं बोलते, वो लोग चाहते नहीं कि मैं रहूँ उनके साथ। और औरत बच्चों का हर चीज़ पूरा होता है। अच्छा, माँ के लिए पैसा नहीं है। थोड़ा सा आप उधर करके। माँ के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, साहब बोलते हमारे पास नहीं है। अच्छा, छोटे बेटे के पास थी, आदमी गुजरा, आदमी था जब भी छोटे बेटे के पास थी। बड़ा बेटा अलग रहता एक था। मिनट, थोड़ा आवाज। हाँ, बड़ा बेटा अलग रहता था, छोटे बेटे के साथ ही थी। आदमी गुजरने के बाद में, जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत अच्छा था। शादी के बाद में वो भी औरत का हो गया। अब औरत जो बोलती वो हिसाब से चलती, उनकी जबान वापरते, उनके सामने हमको नज़र से गिरा के बात करना, आँख फाड़ फाड़ के बात करना, आँख पे आना, और उल्टा हमको ही पूरा बुला बोलना। और हम खर्चा नहीं दे सकते उनको, दवा के लिए बोलो, कुछ और भी चीज़ को हम नहीं दे सकते, सिर्फ खिला सकते। हम 2 टाइम खिलाते हो, मेहरबानी समझो। अच्छा, और उन लोग के बच्चों के सामने भी यानी वो आपके जो बच्चे हैं दोनों भी यानी आपके बहू के सामने आपको जलील करते हैं? बच्चों के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके औरत के सामने बहुत बुरा भला बहुत बोलते। बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कुछ बोली नहीं। बहुत दिन तो यहाँ का एड्रेस किसने दिया? नहीं, तो वो है मेरे पहचान वाले हैं, वो जारा मैडम की दोस्त भी है, साथ में रहते, तो उनके पास में वो हमारी पुरानी 30-40 साल की पुरानी थी पहचान है। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं घर छोड़ के निकल गई। किसी को कुछ नहीं, किसी को नहीं बताई, कुछ नहीं बताई। एक बेटी मीरा रोड में रहती, उसके पास आई, वो जरा मेरा ध्यान देती थी। एक बूढ़े बाबा से हम मिले, उन्होंने तो ये बताया कि मेरा बेटा हाई कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है, लेकिन वो मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहता, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए ना, सुन के इतना दुख हुआ। एक बाप ने कितने जतन किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना कर्ज किया होगा अपने उस बेटे को, उसने पढ़ाया लिखाया, उसे वकील बनाया होगा, और वकील बनने के बाद वही बाप बेटे को चुभने लगा, और उस बेटे ने उठाकर उसे यहां पहुंचा दिया। हो सकता है पॉसिबल है कि ये बाबा गरम दिमाग के होंगे, डांटते डपटते होंगे, ताना देते होंगे, लेकिन याद रखो, अगर कोई घर में आपके डांटने डपटने वाला है तो अरे आप खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जिस बाग का कोई माली नहीं होता वो बहुत जल्दी उजड़ जाता है। क्या बताया था? हरिशंकर मिश्रा साहब। हरिशंकर मिश्रा? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं दादा, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा। जो हमको अपने साथ रखने को डरते हैं, वो किस काम के हमारे बच्चे? फैन बंद करें, गलत बोलते हैं। हाँ, हमको यहाँ कर दिया हमारे अपने। एक लड़का हाई कोर्ट में वकील है, हमको अपने साथ में नहीं रखना चाहता। हाई कोर्ट में वकील है? हाँ, बम्बई हाई कोर्ट में। अच्छा, लेकिन आप अपने साथ नहीं रखना चाहता? दूसरा लड़का? एक लड़का डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, अभी पास नहीं, अभी इस साल फाइनल में गया MBBS। एक लड़का हाई कोर्ट में वकील और डॉक्टर, लेकिन बाप को रख नहीं सकते। माँ बाप की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि ये सूरज की तरह होते हैं, इन्हीं की वजह से घर में उजाला होता है। एक बार ये चले गए तो घर में अंधेरा छा जाता है। मैंने कई माँ बाप से एक सवाल किया, हालांकि माँ बाप के दिल को कभी टटोलना नहीं चाहिए, उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल आया तो मैंने पूछ ही लिया। मैंने कई माँ बाप से पूछा कि आपको आपकी औलाद ने, आपके अपनों ने इस हालत में पहुंचा दिया, जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी लगा दी, उन्हीं लोगों ने जिनसे आपको इतनी उम्मीदें थी कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेंगे, लेकिन आज आपको इस स्थिति में, इस हालत में उन्होंने पहुंचा दिया, तो क्या आप अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं या बद्दुआ करते हैं?
आपको यकीन नहीं आएगा कि एक माँ बाप भी ऐसा नहीं मिला। हालांकि शिकायतें बहुत की उन्होंने, बहुत यानी रोते हुए आंसू निकाल कर उन्होंने उनकी शिकायतें की, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, बल्कि हम दुआ ही करते हैं। एक भी बंदा या बंदी या एक भी माँ एक भी बाप ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं, हम अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। अपन मेरी तबीयत थोड़ी नरम चलती, इसके लिए यहाँ रख के रख दिया ऐसा। यानी आपको यहाँ पर ओल्ड एज होम में तुम्हारे बेटे ने डाल दिया, तुम्हारी खिदमत नहीं किया, यहाँ लाके डाल, तुम खुश है? हाँ? ओ बाबा मैं यार यानी बुराई नहीं करना चाह रहे आप? जी मैं किसी की बुराई में जी मैं SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी ना चर्च गेट्स पे उधर से 1980 में मैंने BCom डिग्री पास की। अच्छा, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब आप ओल्ड एज होम में हैं यहाँ पर और फिर भी आप अपने बेटे से खुश हैं। ये असल में एक माँ का दिल है। कोई औलाद नहीं, जिसे को माँ बाप से प्यार न हो और कोई माँ बाप ऐसे नहीं, ये इतने हैं ना यहाँ पर, पता नहीं, हो सकता है अल्लाह ने रिस्क इधर की लिखी दी होंगी तो हो सकता है सब आए हुए होंगे, ऐसा भी कुछ अल्लाह ताला को मिलाना होगा इधर सब लोगों से, इसके लिए हो सकता है सब। आपको मतलब आप खुद से यहाँ पर आए? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ खुश हैं आप? अब तो क्या खुशी और क्या नाखुशी है, सब कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, वक्त गुजर रहा है, चल चलाओ का वक्त है, निकल लेंगे दुनिया से। किसी बात का दुख? कोई दुख नहीं। तो जैसे एक फैमिली को मिस नहीं करते? नहीं, क्योंकि मैं जब मैंने खुद ही सोचा है कि मुझे यहाँ रहना, उन पर वजन नहीं बनना है, तो फिर इसमें मिस करने की कोई बात नहीं, बल्कि मेरी तरफ से उनको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप वजन थी उनके ऊपर? नहीं, मैंने खुद को महसूस किया मैं उनके पर वजन हूँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनकी पीठ सुनती है, कुछ भी नहीं, बहुत प्यारी बच्चियाँ, अल्लाह ऐसी बच्चियाँ सबको दे। अल्लाह ताला अगर तुमको ये मौका दे कि अपने औलाद को तुम माफ़ कर देंगे? माफ़ तो कर ही देंगे, औलादे नो। अच्छा, हमने दुख उठाया तो उनको क्यों दुख देंगे, उनके औरत बच्चों में खुश है, रहने दो खुश, अल्लाह उनको माफ़ करे। यानी इतना होने के बाद भी आप माफ़ कर देंगे? औलादे नो। चलिए, मैंने ये भी पूछा एक माँ से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर आपको पूछे कि आप अगर कहेंगे तो अभी आपके औलाद को जहन्नम में डाल देंगे, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि मैं आज ही कहती हूँ कि मैंने माफ कर दिया, दुनिया वाले भी मेरी औलाद को सजा ना दे और अल्लाह भी मेरी औलाद को सजा ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है माँ बाप का दिल। क्या अल्लाह ने माँ और बाप का दिल बनाया है कि वाकई में, यानी किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे मोहब्बत का पता उस वक्त चला कि जब सेब 4 थे और हम 5, और माँ ने तब कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं है। इससे माँ की मोहब्बत का अंदाजा लगता है। कितने बदनसीब है वो औलाद जिन्होंने अपने माँ बाप को थोड़ी सी उनकी ज़ईफ़ी की वजह से, उनकी खिदमत की डर की वजह से, या उनके खर्च की वजह से, या उनके लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसके लिए अपने माँ बाप को उन्होंने डाल दिया, जो उनकी दुआओं से दुनिया और आखिरत संवरने वाली है। उन्हीं माँ बाप को उन्होंने अनाथ आश्रम में लाकर डाल दिया, या वृद्धा आश्रम में लाकर डाल दिया, ओल्ड एज होम में लाकर डाल दिया। मैं ऐसी औलाद को बदनसीब ही कहूंगा, बदकिस्मत ही कहूंगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने इस वीडियो में वो ओल्ड एज होम वाला इंटरव्यू आपको डिटेल में और तफसील से नहीं बताया। अगर आप वो इंटरव्यू पूरा देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उस इंटरव्यू का, उस डिटेल में इंटरव्यू का आप पूरा इंटरव्यू देखें। वाकई में आपको बहुत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वो इंटरव्यू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक है उस पूरे इंटरव्यू के वीडियो का, उस पर क्लिक करें और आप पूरा इंटरव्यू डिटेल में आप देख सकते हैं। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि 2 लोगों का हमेशा ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरी वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी मां। दुनिया की सबसे भयानक, सबसे खराब आवाज उस औलाद की है जो चीख और चिल्लाकर अपने माँ बाप से बात करती है।
कितनी कमाल की बात है ना कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। एक बात आप याद रखें, अगर तुम्हारे माँ बाप के होठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। बहुत रोता हूं लेकिन मेरा दामन कभी नम नहीं होता, उनकी आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कोई घर सिर्फ बड़ा होने से, खूबसूरत होने से या वहां पर स्विमिंग पूल, कार और गार्डन होने से बड़ा नहीं होता, खुशहाल नहीं होता। अगर वहां के बुजुर्ग, वहां के माँ बाप और वहां के उस घर में रहने वाले ज़ईफ, उन लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो वो घर खुशहाल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।